Hello, my beautiful souls. And today I have a very special guest. And guess who? From my own city, the city of temples, Jammu. Yes. And she is none other than the amazing parenting coach, Anita ji. Welcome to this special live of the Nisa show. And I'm absolutely thrilled to have you here. Type live if you are here with us right now, or type replay if you are watching this amazing conversation later. So, if we haven't met yet, I am Nisa, Kamarul Nisa, your Hikmat coach, and I am on a mission to help 1 lakh corporate professionals achieve inner wisdom, heal that emotional wounds, and rise at confident, harmonious leaders in both their personal and professional lives. And I help corporate professionals transformed into hikmat leaders. They are born to be, जो हमेशा से होते हैं, बस उनको उस स्पेशल अपने इनर सेल्फ को टैप करना होता है. And how they can do this? By using this my 6 pillars of the hikmat method. And I'm also the founder of hers Harmonious Empowered Relationship Society. And today I'm absolutely excited to dive into one of most challenging yet important phases of parenting, behavior parenting for teens. Meet with an amazing guest, Anita Salathia ji. She is a behavioral parenting coach, author of 4 parenting books. Socho, author of 4 parenting books. And whether you are currently struggling with teenage behavior or preparing for those years ahead, क्योंकि हम पता नहीं होता है हमें बच्चों के mood swings, today's conversation is going to be an incredibly valuable for you all. Welcome, Anita ji. So, could you please introduce yourself to our beautiful audience, to our beautiful souls who are watching us right now? Yeah, who watched this episode after we did this. Yes, sure. I am very, very thrilled and very grateful to be there in Kamar Nisa's podcast today. And I'm really feeling very blessed because she's a very beautiful and a very nice soul and very blessed soul. And today I think I am also totally blessed to be here on her show today. And beginning with my introduction, I am a parenting coach. I am Anita Salathia and parenting coach especially with teenagers. अब जब टीनेजर्स की बात होती है तो एक अलग सा ही दौर शुरू हो जाता है. अब पेरेंटिंग तो हम छोटे बचपन से ही आपने देखा होगा, कई कोचेस हैं, कई पेरेंट्स हैं, बोलते हैं हमने बच्चों के लिए मदद लेनी है. बट आई हैव चोजन दिस niche स्पेशली विद द टीनेजर्स, the parents who are struggling with the teenagers. और प्रॉब्लम क्या है कि वो हमारे ही बच्चे हैं पर अलग क्यों है. यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. हम आज तक 14-15 साल तक उन्हें सीने से लगाए बैठे हैं, हमारे बच्चे खाना खिला रहे हैं, सब काम बच्चों के लिए कर, अचानक से वो अलग क्यों नजर आने लगता है आपको. अलग से आपके साथ ऑपोजिशंस क्यों हो रही हैं, स्ट्रगल्स, पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती हैं पेरेंट्स के साथ, मदर्स के साथ, फादर्स के साथ. बस यहां से ये जिद्दोजहद स्टार्ट होती है एंड पेरेंट्स आर इन अ फिक्स. अब पेरेंट्स की कौन मदद करेगा. क्या पेरेंट्स जाते हैं किसी से मदद मांगते हैं कि क्यों मांगे, वो भैया हमारे अपने बच्चे हैं. कुछ पेरेंट्स तो झिझकते हैं, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या स्ट्रगल है. वो किस मुंह से बोले कि भाई हमें अपने अपने खुद के बच्चों से स्ट्रगल है. सबसे बड़ा मुद्दा ये सोसाइटी में आ रहा है. खुद का बच्चा, एक ही छत पे रह रहे हैं बट आपसे बात नहीं कर रहे, आप उनसे नाराज रहते हैं, आपको उन पे गुस्सा आता है, उनको आपके ऊपर गुस्सा आता है. तो बस यहाँ ये जो लड़ाई शुरू होती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, इसके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है. किस मुंह से पेरेंट्स बोले भी हम परेशान हैं, किस मुंह से टीनेजर्स बोले हम परेशान हैं. अपनों से परेशानी कोई अगला भी क्या सोचता होगा कि भाई ये कौन सा मुद्दा हुआ, भाई आपके अपने बच्चे हैं, क्या परेशानी हो सकती है. बट है, अंदर से है. दिल में जो कसक रह जाती है
कि हमारा अपना ही बच्चा नहीं सुन रहा। इससे बड़ी हम्म, और शॉकिंग क्या हो सकता है पेरेंट्स के लिए। और बच्चे हम्म, अलग से, वो दिखता है अरे वो बच्चे आपके पेरेंट्स से बस से बोल रहे हैं और हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी स्ट्रगल लगी। बस इसी मुद्दे को लेकर मैं ये मेरी कोशिश है कि मैं इस प्रकार के पेरेंट्स के साथ काम कर रही हूँ। और जब भी उन पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है वो मुझे अप्रोच करते हैं, और उनके लिए मैंने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया है, एक कोर्स क्रिएट किया है कि जिससे ये जो बड़े नाजुक से का वक्त है, बड़ा नाजुक वक्त है, होता 2-3 साल का ही है, उसके बाद वही बच्चा आपके साथ जुड़ जाता है। आप भी, हम्म, आप एक दिल एक जान हो जाते हो, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म, बट ये जो बीच हम्म, का जो ट्रांसिशन पीरियड है, इट्स वेरी क्रूशियल, वेरी डिफिकल्ट। वेरी आपने क्रुशियल। इसमें आपने अपने बच्चे को संभाल लिया तो आप, हम्म, आपकी जीत है। और अगर हम्म, आपने उसको लूज कर दिया तो आपकी भी हार है और बच्चे की भी हार है। बच्चे की बाद में हम बिहार। सिर्फ पछतावे के लिए रह जाते हैं। सो ट्रू, सो That is ट्रू। why I have made it my mission to help as many parents who approach me, and I try to solve their issues to their core and help them to come out from this phase of their phase of life. So life. true. You are doing such an amazing job, अनीता जी। और जो कि एक आज के वक्त की जरूरत है ये, बिल्कुल। क्योंकि वही सो मैनी पेरेंट्स यही कंप्लेंट होती है। अभी तो बच्चे का मूड ठीक था, अब क्या बिल्कुल। हो गया, किस हाँ। चीज पे, क्यों ये नाराज हुआ, हमें समझ नहीं आती है। करेक्ट। सडनली वो जो उनके वो मूड स्विंग्स हमें समझ नहीं आते हैं। या हमें लगता है हम किसी अजनबी से बात कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। ये जैसे कि आपने बताया तो हमारे बच्चे हैं, हो क्या गया, ये जो दौर आया, यही 3 साल, तीन बिल्कुल। साल जो है हम कैसे बिल्कुल। डील करें इनसे। ऐसे ही। So, as a teenage parenting coach, what are the most common struggles कि पेरेंट्स फेस कर रहे हैं आजकल, जो ये टीनेज को हिट करते हैं जब बच्चे, एंड व्हाई डज दिस फेज फील, आई थिंक, सो चैलेंजिंग। ये यस। एक पेरेंट के लिए नहीं है, बोथ पेरेंट, फादर के लिए भी और मदर के लिए भी। यस। ये आजकल क्यों इतना चैलेंजिंग बन गया है, क्या वो यस। वजूहात है कि ये आज इतना चैलेंजिंग हो गया है? बिल्कुल, आपने ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि आज हर मॉडर्न पेरेंट इसी बात से की जो जिद्दोजहद लगी हुई है ना, पेरेंट्स की बस वही है। पढ़ाई तो है ही है अपनी जगह पे, पढ़ाई का एक अलग सिलसिला है, पर उसके साथ जो बच्चों की जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं ना पेरेंट्स घर के अंदर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि पेरेंटिंग, जो टीनेजर्स को पेरेंटिंग करना एक बड़ा यूनिक स्पेशल अप्रोच चाहिए पेरेंट्स को। अब वैसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब हमारा बच्चा ना तो बिल्कुल छोटा कहलाएगा और ना ही हम उसको बुजुर्ग बोल सकते हैं, समझदार बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। और अगर हम उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तो उनको ईगो इश्यूज आ नाराज हो जाते जाते हैं। हाँ, ईगो इश्यूज आ जाते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है यहाँ, वो है कि भाई क्यों। ये है कि सबसे पहले हमें एज अ पेरेंट हमें ये समझना है कि हमारा बच्चा एक्सप्लोर कर, वो अभी नई नई चीजें, हर चीज उसको नई दिख रही है। अब वो अपने आप को छोटा बच्चा नहीं फील कर रहा, उसने सोसाइटी में एडजस्ट करना है। अब पेरेंट्स के साथ उसका कुछ नहीं होने वाला, पेरेंट्स के साथ वो कुछ नहीं सीखेगा, वो एक्सप्लोर करेगा, एक अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, इंडिपेंडेंट होना सीख रहा है। और तीसरी चीज, फ्रीडम को महसूस करने की कोशिश कर। ये तीनों चीजों अगर पेरेंट्स बहुत सीरियसली समझें तो आई थिंक ये जो जितनी भी लड़ाई है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, ये खत्म हो जाएगी, अब ये हो रहेगी जाएगी। नहीं। बिकॉज एज अ पेरेंट हमें ये समझने की जरूरत है हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको अपनी एक जगह बनानी है सोसाइटी में, आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। वो कैसा है, बाहर के फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर, क्या वो उसको अपना रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी के साथ चल रहे हैं। इंडिपेंडेंस, क्या वो अपने पेरेंट्स के ऊपर इतना मतलब डिपेंड कर रहा है कि वो कोई भी छोटी से छोटी अपना कोई फैसला नहीं ले पा रहा। फ्रीडम उसको इतनी चाहिए, अगर उसके पेरेंट्स बोलेंगे नहीं हम घर में ही करो, हम सब कुछ आपके लिए कर देंगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल नो, है।
वो बच्चा बड़ा हो इम्पॉसिबल। रहा है, वो आपको हर चीज के लिए परेशान नहीं करना चाहता। वो समझता हम्म। है बच्चा कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं कितनी देर तक अपने पेरेंट्स को परेशान करता रहूंगा, मुझे खुद भी सीखना है, खुद आगे आना है। तो वो छोटी छोटी जो घर के अंदर जो उसको फीलिंग्स आती हैं, उनको समझना पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। जब पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें ये देखना है कि हम कितना बच्चे को फ्रीडम दें और कितना उसको उसकी लाइफ में जाएं। तो मैं ये हम्म। कहूंगी कि टीनेजर का पेरेंट होना इज नॉट इजी, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो। व्हाई? हाँ। बिकॉज हमें एकदम बैलेंस करके चलना। हम्म। थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, पर हमने ये देखना है कि हमारा जो बच्चा है घर के अंदर, वो बड़ा हो चुका है। उसकी बस एक चीज, एक सीक्रेट मैं आपको शुरू में बता देती हूँ। टीनेजर को का कभी भी ईगो हर्ट मत कीजिए। हम्म। जब आपने टीनेजर का ईगो हर्ट किया, तो आप समझ लो कि आपके पास प्रॉब्लम्स की छड़ी लग जाएगी। बिल्कुल। चाहे वो सब कुछ आपके कहने पे करेगा, आपका ही बच्चा है ना, कहाँ जाएगा, आप ही का ही बच्चा है, आप ही का सब कुछ करेगा। बट उसकी ईगो हर्ट मत कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुश रहे और आप भी खुश रहो। बिल्कुल। यस, दिस इज वेरी बिल्कुल सो। इंपॉर्टेंट। यस। और उसके साथ एक जो आपने प्रश्न किया था, उसका एक उत्तर, एक एक आंसर मैं दे सकती हूँ एक वर्ड में, कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की। हाँ, कम्युनिकेशन इज वही ना। हम क्या 10 चीजों में से उसकी एक भी नहीं मान सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ये जो मेरा टॉपिक शुरू हो जाता है, हिकमत वर्ड। यस तो हिकमत क्या होता है? विजडम से उनको बिठा के कभी प्यार से भी तो करा जा सकता है, उनके पसंद की एक चीज भी तो बना सकते हैं, उनके साथ बैटर भी तो किया जा सकता है, तुम ऐसे करो मैं ऐसे करूंगी। अच्छा, यस। जो वो चाहते हैं उनको मोस्टली, कि आजकल पेरेंट्स का क्या हो गया है, कभी मैंने देखा बच्चों को गले ही नहीं लगाते हैं। खत्म हो बिल्कुल गया वो वाला फेज की। मुझे बिल्कुल। लगता है मेरे बच्चे भी, छोड़, हम तो बार बार पकड़ लेते थे या जब हम बच्चे थे। अब वही जो आपने बोला, कम्युनिकेशन खत्म हो गया है। और जहां हम बातचीत छोड़ दें तो वहां तो इश्यूज ही क्रिएट हो जाएंगे। सच में आपने मेरे और पॉइंट्स को रीअश्योरिंग दी। सच में कि बिल्कुल। मैं जहाँ पे मुझे और वही ना, आपने वो स्टैंप लगाई एज अ पेरेंटिंग कोच की, यस यस यू आर राइट कमर। यस And यस such may you are helping parents understand that this यस। challenging phase is ट्रू। actually normal, क्योंकि नॉर्मल नहीं समझा जाता है, जैसे आपने बताया कि इट्स अ नॉर्मल। एंड द रियल रीजंस बिहाइंड दीज, वो जो आजकल के ये ड्रामेटिक चेंजेस है, या जो भी बाहर बच्चा सीख के आ रहा है, कि आपने बताया उसके पेरेंट्स तो ऐसे कर रहे हैं, मेरे क्यों नहीं कर रहे? यस सो यस। हमें वही हिकमत से डील करना है, और इट्स नॉट इम्पॉसिबल नहीं है, राइट। पॉसिबल है, और हम पेरेंट्स के लिए ही पॉसिबल है, और यस। कोई नहीं कर सकता। वेरी और गुड। यहाँ और आपके साथ पास में, इतने अच्छे कोच और हैं आपके साथ, कि आपको बताने के यस, लिए रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में जो ये आपने शब्द ये अपना हिकमत क्वींस जो आपने लिया है ना, इससे मैं बहुत रिलेट कर पाती। बिकॉज हम्म। जो ये हिकमत जो आप शब्द का मैं इस अक्षर का बता रहे हो मीनिंग, और और हम मदर्स क्या हैं, हम मदर्स यही तो रोल प्ले कर रही हैं कि हम्म। जब तक हम बच्चे के पेट में ना घुसे, हम कहते हैं ना, ये बहुत मशहूर, ये मैं अपने पेरेंटिंग ट्राइब में भी कहती हूँ, कि पहले हमारा बच्चा हमारे पेट में होता है, पर जब हम बच्चा बाहर आ जाए ना, तो इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली तो नहीं, पर इमोशनली हम, साइकोलॉजिकली हम बच्चे के पेट में चले जाए। समझ बिल्कुल रहे हो चले जाते हैं। कि बिल्कुल। बच्चा जब, हम मतलब बच्चा एक बार कुछ भी डिसीजन ले, आपके साथ शेयर करे, खुशी हो बिल्कुल। आपके साथ शेयर करे, अगर बच्चा सैड है आपके साथ शेयर करे। अगर बच्चा हर चीज शेयर करता है अपनी लाइफ की, तो फिर परेशानी कहाँ है? बिल्कुल। अब आजकल क्या हो गया, मदर्स ऐसे मोबाइल पे लगी है, अच्छा क्या बोल रहे हो तुम, अच्छा हम्म क्या चाहिए? हम्म। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल। अटेंशन, जब उसको यहाँ से अटेंशन नहीं मिलेगी, कहीं तो वो अटेंशन ढूंढेगा। हम्म। तो थैंक यू सो मच, दिस ब्रेक्स, क्या आपने आइस ब्रेकर का काम किया है आज। सो यस। मैं अगले एक इम्पोर्टेंट ऐसा भी इशू है कि आजकल जो है अब, या तो बच्चे क्या कर रहे हैं, या तो चुप हो गए हैं।
बात ही नहीं करनी, या उनका आंसर वन वर्ड में है, या उनका आंसर वन वर्ड में है, या तो बिल्कुल शांत है, या जब बोल पड़े तो फिर तो वही एक्सप्लोजन ही हो गया, एक्सप्लोजन, फाइट्स हो गई, करेक्ट। सीधे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता है। एंड नाउ डेज, जैसे कि आपने बताया, कम्युनिकेशन सीम्स टू बी बिगेस्ट ब्रेकडाउन बिटवीन मदर्स फादर्स या टीनेजर्स के बारे में। या तो वो यस। बात करना छोड़ देंगे, या तो वही सीधा आर्गुमेंट पे आ गया, क्योंकि हम उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन। एंड व्हाट आर करेक्ट। द मोस्ट, अभी ये खत्म हो गया तो इसके बाद क्या मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज आप यूज करते हैं इसको रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि अब खराब तो हो चुका है थोड़ा सा, इस कनेक्शन को रीबिल्ड करने के, इस ट्रस्ट को दोबारा बनाने के लिए क्या क्या मदर्स या पेरेंट्स को करना चाहिए? यस, ये तो आपने बहुत ही उम्दा बात पूछी है। बिकॉज मेरे पास जितने भी जो ट्राइब में मेरे आते हैं पेरेंट्स, वो टीनेजर, जब उनका टीनेज के साथ लिंक टूट जाता है ना, जहां लड़ाइयां हो जाती हैं स्टार्ट, तब उनको कोई किसी से पूछते हैं वो कि अच्छा ठीक है, ये मैम टीनेजर की वो करती हैं काउंसलिंग, तो ठीक है, तब आते हैं। तो मैं उनको यही बताती हूँ कि आप इतना इंतजार मत कीजिए कि आपका बच्चा टीनेजर हो जाए। आप उनको बचपन में ही उनको पकड़ लीजिए। वैल्यूज। हम्म। होते होते से उनके साथ फ्रेंडशिप कीजिए। हम्म। डिसिप्लिन की जगह डिसिप्लिन रखिए, फ्रेंडशिप की जगह फ्रेंडशिप रखिए। डिसिप्लिन रखिए, बात कम कीजिए बच्चों के साथ। देखिए, सबसे पहली बात मैं उनको कहती हूँ, पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स कैसे फ्रेंड्स बन सकते हैं? और कोई जरूरत भी नहीं है फ्रेंड्स बनने की। ये नहीं बोल हम्म। रही आप फ्रेंड्स बनिए, बट कीप योर डोर्स ओपन। हम्म। Keep discipline on one side and keep your doors open, that whenever child is in trouble, he knows that my mother is there. I हाँ। don't have to worry. If he is हम्म। in trouble, you know that yes, to whom are you going to go? Yes, I am going to go. I am going to tell my mother. बस। हम्म। और अगर मदर को सब पता है, तो डोंट यू थिंक सो चाइल्ड इज सो फ्री ऑफ हिज माइंड, हिज इश्यूज? और जो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहते हैं, बच्चों को ओपन डोर्स नहीं देते हैं, वो बच्चे पक्का कहीं बाहर जाकर कहीं प्रॉब्लम में फंसने ही वाले हैं। पक्का पक्का। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका टीनेजर बाहर किसी से सलाह मशवरा करे? कभी नहीं। हम्म। यू विल बी हम्म। हर्ट। आप सबसे पहले आपको हर्ट होगा कि मेरे बच्चा मेरे से नहीं पूछ के बाहर किसी से पूछ रहा है। आपको सबसे हम्म। ज्यादा परेशानी होगी। तो क्यों ना हम अपने दरवाजे खुले रखें दिल के, और बच्चों को आने दें। बच्चों को हर बात के लिए क्रिटिसाइज ना करें। तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल। आज, मेरे पास 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ऑडियंस बैठी है, अगर वो चाहती है कि वो इससे कुछ फायदा लेना चाहती है, तो अपनी डायरी और पेन लीजिए और नोट कीजिए। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको पहले ही बताया, कम्युनिकेशन इज द की। हम्म। हमेशा ये देखिए कि छोटे बच्चे, आप टीन्स की बात करते हैं, प्री टीन में जब बच्चा होता है, बच्चे को आदत डाल दीजिए कि हमेशा, क्या प्रीटीन हो या टीन हो, बच्चा चाहता है कि मेरी सुनी जाए। जैसे अभी हम्म। कमर मैम ने बोला कि आप मोबाइल लेके बच्चे के साथ बात करती हैं, तो वो बच्चा सोचता है कि मेरी तो कोई बात सुन ही नहीं रही है मम्मा। ठीक है। एंड और हम ऐसे बात करते हैं कि बच्चे के साथ आंख में आंख मिलाकर बात कीजिए, तब हम्म। बच्चे को दिल को सुकून मिलता है कि हाँ, मेरी मम्मा हम्म। मेरे साथ कर रही है, मेरे साथ। और हम्म। हम क्या करते हैं, मोबाइल छोड़ने के बाद बच्चों को लेक्चर पिलाते हैं। एंड उसके बाद लेक्चर पिला दिया आपने, तो योर कम्युनिकेशन इज ब्रोकन। सो दिस इज द फर्स्ट, communication is the key, but no lectures. नो It should be लेक्चर्स। open, respectful conversations help to build trust in your child. बिल्कुल एक ट्रू। बार बच्चे को ट्रस्ट आ जाए कि माय मदर इज नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज मी, नॉट गोइंग टू अपोज मी, नॉट गोइंग टू say something extra, but she is only there to listen. हम्म। So keep your listening doors open, keep your ears open, but keep your mouth closed. हम्म। Because the more we listen, the more child is happy. And second, हम्म। set boundaries with love. Because without boundaries, your parenting is incomplete. Boundaries rakhiye, but प्यार से। हम्म। Rules are very important. Rules are very important at home. अगर रूल्स आप आर वेरी इंपॉर्टेंट।
यस, अगर आपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाना है, रूल होना चाहिए कि योर मोबाइल शुड बी स्विच्ड ऑफ एंड